हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम पार्ट नंबर 2। डिस्क्लेमर: The images, text and other materials used in our representation are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. Two pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each. Starting with pipe A first. In how many hours will the tank be filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 9 hours respectively. They are opened alternatively for 1 hour each. Starting with pipe A first. In how many hours will the tank be filled? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 7। सॉल्यूशन: A 6 आवर्स में फिल करता है, B 9 आवर्स में फिल करता है। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। 18 मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं। तो A की एफिशिएंसी आएगी 18/6 इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर और B की एफिशिएंसी आएगी 18/9 इक्वल टू 2 यूनिट पर आवर। In the first hour, A will fill 3 units. In the second hour, B will fill 2 units. According to this, A and B will fill 5 units in 2 hours. 5 units in 2 hours, so 15 units in 6 hours. Hence, in the next hour, that is 7th hour, A will fill remaining 3 units. यानी कि टोटल 7 आवर लगेंगे इस टैंक को फिल करने। Pipes A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours respectively. If pipe A, B and C are open at 6 am, 8 am and 10 am respectively on the same day, then when will the tank be full? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A, B and C can fill a tank in 15, 30 and 40 hours respectively. If pipe A, B and C are open at 6 am, 8 am and 10 am respectively on the same day, then when will the tank be full? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 3:20 PM। सॉल्यूशन: यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.7। A 15 आवर में फिल कर रहा है, B 30 आवर्स में और C 40 आवर्स में फिल कर रहा है। 15, 30 और 40 का एलसीएम आएगा 120 यूनिट, यानी कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को 120 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। अब A की इफिशियंसी को निकालेंगे, 120 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 8 यूनिट पर आवर। B की इफिशियंसी को निकालेंगे, 120 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर और C की इफिशियंसी को निकालेंगे, 120 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर। Pipe A opened at 6 am, so till 10 am, that is in 4 hours, A will fill 8 multiplied by 4 equal to 32 units. Pipe B, which opened at 8 am, so till 10 am, that is 2 hours, it will fill 4 multiplied by 2 equal to 8 units. Remaining part equal to 120 minus 32 plus 8 equal to 80 units. Now at 10 am,
all the three pipes are open. So time taken to fill remaining part, that is 80 units, equal to 80 divided by 8 plus 4 plus 3, equal to 80 by 15 hours, equal to 5 hours 20 minutes. So the tank will be filled at 3:20 PM और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. A tap A can fill a tank in 20 hours and tap B can fill the same in 30 hours. If both taps are open together, then how much time will be taken to fill the tank? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Tap A can fill a tank in 20 hours and tap B can fill the same in 30 hours. If both taps are open together, then how much time will be taken to fill the tank? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 12 hours. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4. ए 20 आवर्स में फिल करता है, बी 30 आवर्स में फिल करता है. 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को 60 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं. अब ए की इफिशियंसी निकलेगी 60 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 3 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी निकलेगी 60 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 2 यूनिट पर आवर. यूजिंग टाइम टेकन इक्वल टू टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई इफिशियंसी इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 12 आवर्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. Two pipes can fill a tank in 15 hours and 4 hours respectively, while a third pipe can empty it in 12 hours. How long in hours will it take to fill the empty tank if all the three pipes are open and simultaneously? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Two pipes can fill a tank in 15 hours and 4 hours respectively, while a third pipe can empty it in 12 hours. How long in hours will it take to fill the empty tank if all the three pipes are open and simultaneously? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 30/7. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.5. ए 15 आवर्स में फिल करता है, बी 4 आवर्स में फिल करता है और सी 12 आवर्स में एम्प्टी करता है. एज सी इज द आउटलेट पाइप. 15 4 12 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट. ये मान लेते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं. तो ए की इफिशियंसी आएगी 60 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 4 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 15 यूनिट पर आवर और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -5 यूनिट पर आवर, क्योंकि सी आउटलेट पाइप है. टोटल इफिशियंसी इक्वल टू 4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट में -5, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 14 यूनिट्स. यूजिंग टाइम टेकन बराबर 60 डिवाइड बाई 14 इक्वल टू आ जाएगा 30/7 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. पाइप ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 6 hours एंड पाइप बी कैन फिल द सेम इन 8 hours. If pipe C can empty the full tank in 10 hours, then in how much time will the tank get filled when all three pipes are open together? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Pipe A can fill the empty tank in 6 hours and pipe B can fill the same in 8 hours.
If pipe C can empty the full tank in 10 hours, then in how much time will the tank get filled when all three pipes are open together? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 5 5 2 by 23 hours. Solution using concept 13.5. A 6 hours में फिल करता है, B 8 hours में फिल करता है और C 10 hours में एम्प्टी करता है as C is outlet pipe. 6 10 8 का एलसीएम आएगा 120 यूनिट, यानी कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं 120 यूनिट. ए की इफिशियंसी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 20 यूनिट पर आवर. बी की इफिशियंसी आएगी 120 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 15 यूनिट पर आवर और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू -12 यूनिट पर आवर. माइनस क्यों है सी की इफिशियंसी? क्योंकि सी आउटलेट पाइप है, पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं. यूजिंग टाइम बराबर टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 20 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट में -12, तो आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 23 इक्वल टू, और सोल्व करेंगे 5 बाय 23 आवर्स. हेंस द करेक्ट आंसर इज 5 बाय 23 आवर्स. An inlet pipe can fill a tank in 10 hours and an outlet pipe can empty the tank in 20 hours. Both pipes are opened at 6:30 a.m. Then by when will the tank get filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. An inlet pipe can fill a tank in 10 hours and an outlet pipe can empty the tank in 20 hours. Both pipes are opened at 6:30 a.m. Then by when will the tank get filled? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2:30 a.m. नेक्स्ट डे. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.3. इनलेट पाइप 10 आवर्स में फिल करता है, आउटलेट पाइप 20 आवर्स में खाली करता है. 10 20 का एलसीएम 20 यूनिट आएगा. ये टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं. इनलेट पाइप की एफिशिएंसी आएगी 20/10 इक्वल टू 2 यूनिट पर आवर. आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आएगी 20/20 इक्वल टू -1 यूनिट पर आवर. -1 का मतलब है ये आउटलेट पाइप है, यानी कि पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसे माइनस के से डिनोट करते हैं. टाइम टेकन टू फिल द टैंक इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 20/1 इक्वल टू 20 आवर्स. Hence the tank will get filled at 2:30 a.m. next day. यानी कि क्या करते हैं, 6:30 a.m. में 20 आवर्स को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट डे के 2:30 a.m. बजेंगे, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. Tape A can fill a tank in 6 hours and tap B can empty the same tank in 10 hours. If both taps are open together, then how much time in hours will be taken to fill the tank? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. Tap A can fill a tank in 6 hours and tap B can empty the same tank in 10 hours. If both taps are open together, then how much time in hours will be taken to fill the tank? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 15 hours. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.3. A 6 hours में फिल करता है, B -10 hours में खाली करता है. As B is an outlet pipe. 6 और 10 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट, और 60 यूनिट को टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं. अब A की इफिशियंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 10 यूनिट पर आवर. B की इफिशियंसी आएगी 60 डिवाइड बाई -10 इक्वल टू -6 यूनिट पर आवर.
-6 इसलिए क्योंकि बी आउटलेट पाइप है, पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करते हैं। टोटल इफिशियंसी इक्वल टू 10 प्लस ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ जाएगा 4। हेंस टाइम टेकन बराबर 60 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 15 आवर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। Pipes A and B can empty a full tank in 18 and 24 hours respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hours. If the tank is 5 by 6 full and all the three pipes are opened together, then in how many hours will the tank be empty? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can empty a full tank in 18 and 24 hours respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hours. If the tank is 5 by 6 full and all the three pipes are opened together, then in how many hours will the tank be empty? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 12 hours। सॉल्यूशन ए 18 आवर्स में फिल कर रहा है, बी 24 आवर्स में फिल कर रहा है और सी 36 आवर में फिल कर रहा है। ए 18 आवर्स में खाली कर रहा है, बी 24 आवर्स में खाली करने वाले, ए और बी खाली करने वाले और सी फिल कर रहा है। 18 24 36 कैल्शियम आएगा 72 यूनिट, यानी कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को 72 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, 72 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 4 यूनिट पर आर आएगा, तो इसको हम लिखेंगे -4 यूनिट पर आर, क्योंकि ए खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से बी को भी हम लिखेंगे 72 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू -3 यूनिट पर आर, क्योंकि बी भी एम्प्टी करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं। और सी भरने वाला पाइप है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 2 यूनिट पर आर। टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 72, 5 by 6 ऑफ टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 5 by 6 मल्टीपल बाई 72 इक्वल टू आ जाएगा 60। Hence, if pipes are open, then 5 by 6 of tank, that is 60 units will empty in 60 divided by -4 प्लस ब्रैकेट में -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 12 आवर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। Two pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank. In how many hours will the empty tank be filled? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 18 hours respectively. Both pipes are opened simultaneously to fill the tank. In how many hours will the empty tank be filled? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 8 2 by 11। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4। ए 15 आवर्स में फिल करता है, बी 18 आवर्स में फिल करता है, 15 और 18 कैल्शियम आएगा 90 यूनिट, यानी कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को 90 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 90 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 6 यूनिट पर आवर। बी की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 90 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 5 यूनिट पर आवर।
यूजिंग टाइम टेकन इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ पाइप्स। तो यहाँ से आएगा 90 डिवाइडेड बाय 6 + 5, यानी कि 90/11 आएगा इक्वल टू 8 2/11, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of a leak, it took 1/3 hours to fill the tank. In how many hours can the leak alone drain all the water of the tank when it is full? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of a leak, it took 1/3 hours to fill the tank. In how many hours can the leak alone drain all the water of the tank when it is full? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 30 hours। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4। पाइप ए 3 hours में फिल करता है। पाइप ए प्लस लीकेज 3 1/3 को कह दूंगा 10/3। 3 और 10/3 का एलसीएम आएगा 30 यूनिट, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी को 30 यूनिट एज्यूम कर देते हैं। अब यहाँ से पाइप ए की एफिशिएंसी आएगी 30/3 इक्वल टू 10 यूनिट पर आवर। पाइप ए प्लस लीकेज की एफिशिएंसी आएगी 30 डिवाइडेड बाई 10/3 इक्वल टू 9 यूनिट पर आवर। एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए इक्वल टू 10 एंड विद लीकेज इट इज 9, हेंस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज आ जाएगी इक्वल टू -1। यूजिंग टाइम टेकन बाय लीकेज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। ये आएगा 30 डिवाइड बाई 1, यानी कि 30 आवर्स आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. If all three pipes one opened together but pipe C is closed after 10 hours, then after how many hours will the remaining part of the tank be filled? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, whereas pipe C can empty the full tank in 40 hours. If all three pipes one open together but pipe C is closed after 10 hours, then after how many hours will the remaining part of the tank be filled? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2 hours। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.5। A 16 आवर्स में फिल करता है, B 24 आवर्स में फिल करता है, C 40 आवर्स में एम्प्टी करता है, एज C इज एन आउटलेट। 16 24 40 का एलसीएम आएगा 240, यानी कि इस टैंक की टोटल कैपेसिटी को 240 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। अब A की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 15 यूनिट पर आवर। B की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 10 यूनिट पर आवर। C की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 240 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू -6 यूनिट पर आवर। -6 C की एफिशिएंसी इसलिए है क्योंकि C खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट। If all pipes are open, then they will fill 15 plus 10 minus 6 equal to 19 units in 1 hour. In 10 hours, they fill 19 multiplied by 10 equal to 190 units. Remaining part equal to 240 minus 190 equal to 50 units आएगा. Time taken by A and B to fill the remaining part, that is 50 units equal to 50 divided by A और B की efficiency 25. तो 50 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू आ जाएगा 2 hours.
और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। Two pipes can fill a cistern in 72 and 90 minutes respectively. If both the pipes are left open, how long will it take for the cistern to be half full? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two pipes can fill a cistern in 72 and 90 minutes respectively. If both the pipes are left open, how long will it take for the cistern to be half full? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 20 मिनट्स। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.4। ए 72 मिनट्स में फिल करता है, बी 90 मिनट्स में फिल करता है। 72 और 90 का एलसीएम आएगा 360 यूनिट और इसे टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं 360 यूनिट। अब ए की इफिशियंसी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 72 इक्वल टू 5 यूनिट पर मिनट और बी की इफिशियंसी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू 4 यूनिट पर मिनट। हाफ कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 180 यूनिट। Hence time taken by both pipes to half fill cistern इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9 यानी 5 प्लस 4 दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 20 मिनट्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। Pipe C and B can fill a tank in 18 minutes and 22 1/2 minutes respectively, while pipe C can empty the full tank in 12 minutes. A and B are open together for 6 minutes and then close. Now C is open. C alone will empty the tank in। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 18 minutes and 22 1/2 minutes respectively, while pipe C can empty the full tank in 12 minutes. A and B are open together for 6 minutes and then close. Now C is open. C alone will empty the tank। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 7 1/5 minutes। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 13.5। ए 18 मिनट्स में फिल करता है, बी 45/2 मिनट्स में फिल करता है और सी 12 मिनट्स में एम्प्टी करता है। 18 14/2 और 12 का एलसीएम आएगा 180 यूनिट और 180 यूनिट इस टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब ए की इफिशियंसी आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 10 यूनिट पर मिनट। बी की इफिशियंसी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 45/2 इक्वल टू 8 यूनिट पर मिनट और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 180 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू -15 यूनिट पर मिनट। माइनस इसलिए क्योंकि सी एम्प्टी करने वाला पाइप। इन 6 मिनट्स ए एंड बी विल फिल, तो 10 प्लस 8 ए और बी फिल करते हैं 10 प्लस 8 18 और 6 मिनट में करेंगे मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 108 यूनिट्स। Hence time taken by C to empty 108 units equal to 108 divided by 15 equal to 7 1/5 minutes और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।